Hello students, in this video we will discuss AC voltage applied to a series LR circuit and some problems based on it, which are usually asked in CBSE 12th board examination and also in some other 12th state boards examinations. First of all, we have to discuss AC voltage applied to a series LR circuit. सबसे पहले इंडक्टेंस तथा रेजिस्टेंस का सीरीज कम्बिनेशन, जिसे एसी सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है, जिसके वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है. सपोज द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ एन इंडक्टर of inductance L and a resistor of resistance capital R, and this combination, that is LR series circuit, is connected to an AC source of voltage V equal to V0 sin omega t. The diagram of LR circuit is represented in figure 1. This is inductor. Symbol of inductor is here, whose inductance is L, and it is connected to a resistor of resistance capital R. Symbol of resistance is also indicated here, and this combination, that is series combination of an inductor and a resistor, that is LR combination, LR series combination, and it is connected to a supply voltage, AC voltage, whose instantaneous value of voltage is given by V equal to V0 sin omega t. This is the symbol of an AC source whose voltage is given by V equal to V0 sin omega t. When the series combination of inductor and a resistor are joined and it is connected to an AC supply voltage, current flows in the circuit. Current flows in the series LR circuit, whose instantaneous value is कैपिटल I. जब LR सर्किट को AC सोर्स से जोड़ा जाएगा, ये AC सोर्स है जिसका सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है सर्किल के अंदर AC वेव फॉर्म को रख करके. तो जब इस LR इंडक्टर और तथा एंड रजिस्टर के सीरीज कम्बिनेशन को AC सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, तो इस सर्किट से LR के इंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा. L का इंड लेफ्ट इंड पॉजिटिव पोटेंशियल पर और रेजिस्टेंस का जो अदर इंड है वह निगेटिव पोटेंशियल पर होगा. तो इसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा LR कम्बिनेशन के सीरीज कम्बिनेशन के क्रॉस, जिससे करंट फ्लो करेगा. इस LR सर्किट में करंट I फ्लो करता है, जिसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू I है और RMS वैल्यू I. अब इस I का वैल्यू हम मालूम करेंगे कितना होगा. इस LR सीरीज सर्किट में करंट का वैल्यू कितना होगा, करंट जो फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू. वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ करंट इन सीरीज LR सर्किट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन AC पावर सप्लाई which voltage is given by V equal to V0 sin omega t, and V equal to V0 sin omega t. This is the instantaneous value of voltage V, which also represents root mean square voltage, V RMS. V0 is the peak voltage, omega is the angular frequency, angular velocity of AC, and T is time. This is series LR circuit in figure 1. सीरीज LR सर्किट. हमने इंडक्टर AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर एंड AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, उस सर्किट को इंडिविजुअली भी डिस्कस किया था. और इसमें उन दोनों सर्किट में
हम लोगों ने देखा था कि जब एसी वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस अप्लाई होता है तो उस सिचुएशन में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट आई से लीड करता है π/2 एंगल से, फेज एंगल π/2 से। हेयर VL इज द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर L विच इज रिप्रेजेंटेड बाई VL, एंड सीरीज कनेक्शन है इंडक्टर और रजिस्टर का, तो इंडक्टर से भी करंट आई फ्लो करेगा और रजिस्टर से भी करंट आई ही फ्लो करेगा। तो रजिस्टर आर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं VR, सिंबल VR से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमने देखा था कि इंडक्टर व्हेन एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ओनली और AC वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर ओनली, देन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL लीड्स द करंट I थ्रू एंगल π/2, and when AC voltage is applied to a resistor of resistance R, then we have already seen that voltage across the resistor VR is in same phase with current I. So VR and I both will be represented along the same direction. Suppose that direction is X, along X-axis, positive X-axis, but voltage across inductor and voltage across inductor and current are not in same phase, but voltage VL across inductor leads current I through a phase angle phi. So we can represent VL, voltage across inductor, along positive I axis and current along X axis, so that phase angle between VL and I will be π/2. So we can on the basis of the analysis of two individual circuits, that is AC voltage applied to inductor and AC voltage applied to resistor, or AC circuit containing inductor only and AC circuit containing resistor only, we can plot, we can draw phasor diagram of LR circuit. So suppose voltage across inductor is represented along plus y axis, ये प्लस y एक्सिस है, एंड करंट, वाइल करंट I रिप्रेजेंट्स along पॉजिटिव x एक्सिस। अब सपोज किया जाए कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को y एक्सिस के लॉन्ग और करंट को x एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कि VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट से π/2 एंगल से लीड करता है, जिसको हमने AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली में के डिस्कशन में, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये एंगल फाई ये, तो अब सपोज कर लेते हैं कि y एक्सिस के लॉन्ग VL रिप्रेजेंट है और VL को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, VL इज रिप्रेजेंटेड बाई OB, VL इज रिप्रेजेंटेड बाई OB इन द फेजर डायग्राम along plus y एक्सिस, while current is represented along x एक्सिस के लॉन्ग करंट I रिप्रेजेंट है, और VR is represented along x axis by OA, this is VR, और VL और I के बीच का फेज एंगल कितना है, π/2 है, दिस इज π/2 एंगल। अब चूंकि AC सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, एक ही फेज में होता है, इसलिए VR को OA से रिप्रेजेंट किया गया है और करंट को भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, VR एंड I इन AC सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, जिसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले ही। तो अब दोनों सर्किट का, अब इंडक्टर AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली एंड AC सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, दोनों को इंडिविजुअली, दोनों का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट यहाँ पर का यूज करके फेजर डायग्राम को हमने रिप्रेजेंट किया। अब VL और VR का जो रिजल्टेंट है वह रिप्रेजेंट हो जाएगा OD से, सपोज करते हैं वो OD से रिप्रेजेंट होगा, और इसके लिए हम एक रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं।
एक रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं और इस रेक्टेंगल के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा रिजल्टेंट वोल्टेज VL एंड VR का रिजल्टेंट वोल्टेज रिप्रेजेंट होगा इस रेक्टेंगल के डायगोनल से, मतलब OD के द्वारा। अब यहाँ पर AD और OB दोनों, OB भी AD भी OB के इक्वल होगा रेक्टेंगल होने से, तो ये भी VL हो जाएगा। अब ये रिजल्टेंट वोल्टेज दोनों का रिजल्टेंट है V, जिसके रिजल्टेंट VL एंड VR दोनों वोल्टेज, VL इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड VR इज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। VL वोल्टेज है इंडक्टर के क्रॉस तथा VR वोल्टेज है, पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस रजिस्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा OD के द्वारा, जो कि इस रेक्टेंगल जो फॉर्म किया गया है OBDA, उसका डायगोनल है, उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा रिजल्टेंट वोल्टेज, जिसका वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो लेट फाई बी द फेज एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज V and current I, which is represented along plus axis. It is clear that in LR series circuit, resultant voltage leads the current through phase angle phi, जिसके वैल्यू को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, और करंट के लिए भी। तो दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ LR सर्किट। दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ LR सर्किट। फेजर डायग्राम। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर होगा VL इक्वल टू, यूजिंग ओम्स लॉ, PD अक्रॉस द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस सेल इज अक्रॉस द इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस सेल है, इंडक्टर इज VL इक्वल्स टू I इंटू XL. XL is the inductive reactance, that is opposition offered by the inductor to flow of to AC current, and it is IXL is I omega L. Inductive reactance is XL is equal to omega into L omega. This is equation 2. And PD across resistor R is, PD across the resistor of resistance R is VR equals to I into R. This is 3. VL and VR both are represented in the phasor diagram along OB and OA respectively, that is along positive I axis VL is represented, while along positive x axis current I and also potential drop across the resistor VR is represented by OA. Now the resultant of VL and VR is given by OD in the phasor diagram. So the resultant voltage of VR and VL is represented by OD, which is the diagonal of the rectangle formed OBAD, and AD is also equal to OB, that is voltage drop across inductor. So this is represented by V equals to root under VR square plus VL square, और दोनों के बीच का VL और VR के बीच का फेज एंगल कितना है, फाई है, तो cos 90 इक्वल टू 0 यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन। तो V इक्वल्स टू अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, और इस ट्रायंगल में भी हो सकता था राइट एंगल ट्रायंगल OAD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, एंड VL इक्वल टू I इंटू ओमेगा L होल स्क्वायर प्लस VR इज IR होल स्क्वायर। Now the resultant voltage V, which is the resultant of VL and VR, can be written as V equals to I square into omega L square plus I square into R square. I square को स्क्वायर रूट के बाहर कर लेते हैं, that is I square root of I square is I is taken out of the square root and I into under root. Now we have R square in one term and in another term omega L
का होल स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। देयरफॉर आई इक्वल्स टू करंट थ्रो LR सीरीज सर्किट, वैल्यू ऑफ करंट, RMS current or instantaneous value of current in LR circuit is given by I equals to V upon R square plus omega L whole square root under, and it is root under R square plus omega L square is impedance, that is total resistance of LR series circuit, which is represented by ZLR, that is V upon Z। और चूँकि LR सर्किट का है तो सफिक्स में LR यहाँ दिया जा सकता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, वेयर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस omega L square is the impedance of series LR circuit. Impedance of series LR circuit, that is represented by the symbol ZLR. This is impedance. Total resistance, that is resistance offered by series LR circuit to AC current, is called impedance of LR series circuit. Impedance कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशंस में, 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में इम्पीडेंस को डिफाइन करने के लिए देता है। डिफाइन इम्पीडेंस या इम्पीडेंस का फार्मूला लिखने के लिए किसी पार्टिकुलर सर्किट जैसे LR सर्किट हुआ या LCR सर्किट का हुआ, तो शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पीडेंस को डिफाइन करने के लिए या फार्मूला लिखने के लिए अक्सर पूछा जाता है इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LR सर्किट। तो अगर पूछा जाए डिफाइन इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट, तो वी कैन डिफाइन इट एज द पोजीशन ऑफर्ड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LR, दैट इज इंडक्टर एंड रजिस्टर, टू फ्लो ऑफ AC करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LR सर्किट। तो इस प्रकार से हमने इक्वेशन 3 में करंट का वैल्यू I इक्वल टू V अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर, दैट इज V अपॉन ZLR रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर को हमने इम्पीडेंस टर्म सही से डिफाइन किया, और सिंबल Z और LR, चूँकि LR सर्किट का है, सीरीज सर्किट का है, तो सफिक्स में LR। अब हम फेज एंगल, करंट का तो वैल्यू मालूम हो गया, इम्पीडेंस भी मालूम हो गया, इसको इक्वेशन 4 कर दें। इम्पीडेंस के लिए रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर इक्वल टू ZR। अब इसमें फेज एंगल हमको मालूम करना है। फेज एंगल यहाँ पर जो वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है फाई एंगल से, जो फेजर डायग्राम से क्लियर है। इन LR सीरीज सर्किट रिजल्टेंट वोल्टेज भी लीड्स द करंट I, and that through phase angle phi, we have supposed that phase angle phi between V and I. So now phase angle phi in LR सीरीज सर्किट। और फेज एंगल ऑब्टेन करने के लिए हम लोग फिर फेजर डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल OAD का यूज करेंगे। तो इन द राइट एंगल ट्रायंगल OAD वी हैव tan phi in triangle OAD, we have tan phi is equal to perpendicular AD upon base OA, AD upon OA, where phi is the phase angle between the resultant voltage V and current I, which is represented along positive x-axis. Current I in the circuit, LR circuit, is represented along positive x-axis in the phasor diagram, while resultant voltage is represented by OD, which is the diagonal of the rectangle formed OADB. So tan phi in triangle OAD, tan phi, और इसके हेल्प से हम फेज एंगल के लिए फार्मूला ऑब्टेन कर लेंगे, और क्या फेज एंगल होगा मालूम कर सकते हैं। इस पर प्रॉब्लम भी tan phi is equal to AD perpendicular upon base OA, AD is VL upon VR, VL is I into L omega,
एंड वी आर इज आई आर। तो फाइनली आई से आई कैंसिल हो गया। तो tan phi को वी एल अपॉन वी आर उसके हेल्प से भी हम मालूम कर सकते हैं अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रजिस्टर अगर प्रोवाइडेड हो, और अदरवाइज अगर वोल्टेज वी एल और वी आर प्रोवाइडेड नहीं है तो इंडक्टेंस का वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी मालूम है और रजिस्टर का वैल्यू मालूम है, तो हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। और tan phi इक्वल्स टू एल ओमेगा अपॉन आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, जिससे कि फेज एंगल हम मालूम कर सकते हैं। देयरफॉर फेज एंगल फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एल ओमेगा अपॉन आर। अब यहाँ इंडक्टर का इंडक्टेंस एल, फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी मालूम हो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया रहे, और रजिस्टर का वैल्यू रजिस्टर का वैल्यू दिया, रजिस्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर प्रोवाइडेड हो प्रॉब्लम में, तो हम फेज एंगल मालूम कर सकते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज भी और आई के बीच में। तो इस प्रकार से हमने एल आर सीरीज सर्किट को कंटेनिंग एसी सोर्स और एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज एल आर सर्किट को हमने डिस्कस किया, और रिजल्टेंट वोल्टेज का वैल्यू वी एल और वी आर का रिजल्टेंट ऑब्टेन किया, करंट का वैल्यू एल आर सीरीज सर्किट में करंट का वैल्यू उसके लिए भी एक्सप्रेशन मालूम किया, और फिर फेज एंगल के इम्पीडेंस को हमने डिफाइन किया, और फिर इम्पीडेंस का फार्मूला जेड एल आर इजकल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और फिर फेज एंगल का फार्मूला फेज एंगल फाई इजकल टू tan इनवर्स एल ओमेगा अपॉन आर। तो इन सभी के लिए एक्सप्रेशन मालूम किया। तो इस प्रकार एल आर सर्किट का हम लोगों ने डिस्कशन को देखा। अब एल आर सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यूजुअली सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में तो यूजुअली पूछा जाता है, एक साल अल्टरनेट करके हमेशा रहता है, और कुछ स्टेट बोर्ड्स में भी, जैसे यूपी बोर्ड है एंड राजस्थान बोर्ड है, हिमाचल बोर्ड है, तो कुछ स्टेट बोर्ड्स में भी एल आर सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि एल आर सर्किट में करंट का वैल्यू कितना होगा, या पीक करंट का वैल्यू कितना होगा, फेज एंगल कितना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज तथा मैक्सिमम करंट के बीच में टाइम लैग कितना होगा, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम यूजुअली पूछा जाता है। तो अब हम लोग एल आर सर्किट पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, जिसमें कि 2 प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। नाउ solutions to problems based on series LCR circuit. First of all, problem number 1, the potential difference across the resistor is, that is VR, is 160 volt, and that across the inductor is 120 volt, that is VL equals to 120 volt. It is given in the problem. Find the effective value of the applied voltage का इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा, दैट इज रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, इफ़ द इफेक्टिव करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पियर, कैलकुलेट द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल इम्पीडेंस मालूम करना है और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज का भी मालूम करना है। अभी रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए हमने फार्मूला ऑब्टेन किया था, V इक्वल्स टू फेजर डायग्राम की हेल्प से सीरीज एल आर सर्किट में, V इक्वल टू रूट अंडर वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। यहाँ इंडक्टर के इंडक्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए V का फार्मूला, रिजल्टेंट वोल्टेज का फार्मूला वी एल और वी आर का, और इसको इस का यूज हम करेंगे, और इस कम्बिनेशन को जोड़ा गया है इसी सोर्स से, जिसके इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का वैल्यू इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इसका, और ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेर ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स। तो 2 चीज़ मालूम करना है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज और सेकेंड टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। और यह प्रॉब्लम सीबीएसई ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 12 एग्जामिनेशन 2019 में पूछा जा चुका है। Now we have to solve it.
Here we have given VR, that is potential drop across, potential difference across or voltage across resistor 160 volt, and VL equals to potential drop or potential difference across the inductor is VL equals to 120 volt. Therefore, resultant voltage, we know resultant formula for resultant voltage, V equals to root under VR square plus VL square. अभी हमने ऑब्टेन किया था LR सर्किट में ये डिस्कशन में, तो VR इक्वल्स टू 160 स्क्वायर प्लस VL 120 स्क्वायर, दैट इज 160 स्क्वायर इज 25600, 120 स्क्वायर इज 14400, दैट इज 400, that is 40 root under 40,000, and a square root of it is 200 volt answer. This is the effective value of the applied voltage, that is the resultant of VL and VR. Now we have to find total impedance of the circuit. तो total impedance के लिए हमने फॉर्मूला अभी देखा था LR सर्किट का, Z इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L ओमेगा होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ न तो L का वैल्यू मालूम है, न ही इंडक्टेंस L का वैल्यू मालूम है, न ही फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मालूम है AC का। इसलिए यहाँ पर सिंपली हम अभी हमने ऑब्टेन किया था I इक्वल टू करंट इक्वल टू V अपॉन Z, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल इम्पिडेंस, देयरफॉर Z इक्वल टू V अपॉन I. सो टोटल इम्पिडेंस ऑफ LR सर्किट इज, ये तो अप्लाइड वोल्टेज हो गया, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू 200 वोल्ट. नाउ टोटल इम्पिडेंस ऑफ LR सर्किट, टोटल impedance of LR circuit is Z equals to V अपॉन I, और V हमने मालूम किया रिजल्टेंट applied voltage 200 and current I in the problem is given. Effective current in the circuit is 1 ampere, 1.0 ampere. Here is current in the circuit is also given, I equals to, ये करंट फ्लो करेगा जब AC सोर्स से L R के L एंड R के सीरीज कम्बिनेशन को जब AC सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो R और L के क्रॉस इंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, जिसके कारण करंट फ्लो करेगा I इस सर्किट में. तो ये करंट I है सर्किट में. तो टोटल इम्पिडेंस ऑफ LR सर्किट इज Z इक्वल टू V अपॉन I, दैट इज 200 अपॉन I इक्वल टू 1.0 एम्पियर. करंट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अप्लाई, ये इफ द करंट इफेक्टिव करंट इन द सर्किट इज 1.0 एम्पियर, दैट इज 1.0, दैट इज 1, 200 by 1, दैट इज 200, एंड इम्पिडेंस यूनिट ऑफ इंसिडेंस SI unit of impedance is ohm. तो total impedance of the circuit is 200 ohm answer. Now problem number 2. A 100 volt 50 hertz AC source is connected to a series combination of an inductance of 100 millihenry and a resistance of 25 ohm. Calculate the magnitude of phase of the current. Also calculate the time lag between current maximum and voltage maximum. And this problem is already asked in CBSE 12th board examinations, and it is also it has been also asked in some state boards 12 boards examinations, for example Punjab board, Haryana board, etc. CBSE बोर्ड में तो LR सर्किट पर बेस्ड प्रॉब्लम यूजुअली पूछे जाते हैं और कुछ स्टेट बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं. इस प्रॉब्लम में एक AC सोर्स जिसका सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, और उसको कनेक्ट किया गया है सीरीज कम्बिनेशन इंडक्टर मतलब LR सर्किट से. इंडक्टर एंड रजिस्टर
इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है L इक्वल्स टू कैपिटल L इक्वल टू 100 मिली हेनरी, दैट इज 100 इंटू 10⁻³ हेनरी। एंड रजिस्टर का रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 25 ओम। ये प्रॉब्लम में प्रॉब्लम में दिया गया है। इट इज़ गिवन, बोथ वैल्यूज आर गिवन इन द प्रॉब्लम, बोथ वैल्यूज ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। और सप्लाई वोल्टेज भी है 100 वोल्ट AC का, और फ्रीक्वेंसी N 50 हर्ट्ज एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम मालूम कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2πm। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ करंट मालूम करना है। पहले मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मालूम करना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I मालूम करना है, और उसके बाद फाई मालूम करना है, फेज मालूम करना है, फाई भी मालूम करना है, और फिर हमको टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट भी मालूम करना है, T मालूम करना है, जो कि फाई इक्वल टू, अगर फाई मालूम हो जाएगा तो फाई इक्वल टू ओमेगा टी। फेज एंगल को एक्सप्रेस किया जाता है फाई इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो पहले हम इसमें करंट का वैल्यू मालूम कर लें। I इक्वल टू V अपॉन जेड, दैट इज टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट उसके द्वारा मालूम हो जाएगा। तो यूजिंग द फार्मूला I इक्वल्स टू करंट इन द सर्किट V सप्लाई वोल्टेज अपॉन जेड, एंड जेड इज गिवन बाई V अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर, टोटल इम्पिडेंस ऑफ, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LR सर्किट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, दैट इज V इक्वल टू 100 एंड R इक्वल्स टू रूट अंडर R स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर R इज 25 ओम, रेजिस्टेंस इज गिवन 25 ओम, 25 स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू 2πn, तो 2πn इंटू L स्क्वायर इक्वल्स टू 100 अपॉन रूट अंडर 25 स्क्वायर 625 प्लस 2π, दैट इज 4π स्क्वायर एन 2πn, 2π का वैल्यू 3.14, n इज 50 एंड L इज ऑल्सो गिवन, L इज गिवन 100 इंटू 10⁻³ 100 इंटू 10⁻³ और इसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा वैल्यू, होल स्क्वायर है इसका, जो भी वैल्यू आएगा उसका। नाउ वी हैव 100 अपॉन और I इक्वल्स टू 100 अपॉन रूट अंडर 625 एंड प्लस 2 इंटू यहाँ 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 50 इंटू 100 है तो 5 इंटू 10⁻³ अब 10⁻+3 10⁻−3 से कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो केवल यहाँ पर 5 बचेगा। 5 इंटू 2 10 एंड 10 इंटू 3.14, तो 3.14 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 ये हो जाएगा, 31.4 का होल स्क्वायर। अब 31.4 का होल स्क्वायर 31.4 में 31.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 31.4 इंटू 31.4 दैट इज 4 इंटू 4 16 61 रिमाइंडर 5 12 4 1 3 4 इंटू 3 12 2 रिमाइंडर 1 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 3 इंटू 3 9 6 5 प्लस 4 9 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 9 985.96, it is 985.96, 100 upon root under 625 plus 985.96, 985.96। अब इन दोनों को भी ऐड कर दिया जाए तो 98 we have 985.96 plus 625 we have 5 5 10 0 remainder 1 8 plus 2 10 plus 1 11 remainder 1
9 + 6 15 1601.96। तो आई का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ से कैलकुलेशन से आई का वैल्यू। देयरफॉर आई इक्वल्स टू 100 अपॉन, देयरफॉर आई इक्वल टू, और आई इक्वल टू 100 अपॉन 100 सप्लाई वोल्टेज था अपॉन, अब नीचे स्क्वायर रूट हो जाएगा 1610.96। अगर 1600 होता 1600 तो स्क्वायर रूट सीधे 40 हो जाता। तो यहाँ 40 पॉइंट समथिंग, 40.2 नियरली, मतलब 14.14, 100 अपॉन 40.14, एंड दैट इज नाउ आफ्टर डिवाइडिंग 100 by 14.14 वी कैन राइट 1220, और 20 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 140, दैट इज 10,000 अपॉन 4014, 2 बार जाएगा, 2.4 के आसपास इसका आंसर आएगा, 2.449, 2.5 नियरली 2.49 एम्पियर करंट का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया। After calculating the value of current I in LR circuit, which is 2.49 ampere, we have to find phase angle, that is phase of the current, magnitude and phase of the current. LR सर्किट में करंट वोल्टेज भी से फाई फेज एंगल से लैग करता है, मतलब वोल्टेज लीड करता है करंट से। तो tan फाई के लिए हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था इसी वीडियो में कुछ समय पहले, tan फाई इक्वल टू L ओमेगा अपॉन R। तो नाउ वी हैव फाइंड फेज। तो फॉर फेज यूजिंग द फार्मूला tan फाई इक्वल्स टू L ओमेगा फॉर फेज एंगल इन फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन सीरीज LR circuit. The formula is tan phi equal to L omega upon R. We have already derived it in this video. एंड L ओमेगा का वैल्यू हमने अभी ऑब्टेन किया था 31.4, जब टोटल इम्पिडेंस LR सर्किट का ऑब्टेन किया था, कैलकुलेट किया था, उसमें 31.4, और रेजिस्टेंस का वैल्यू प्रॉब्लम में दिया है 25 ओम, दैट इज 31.4 इज L ओमेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, और R का वैल्यू प्रॉब्लम में 25 दिया हुआ है। 31.4 अपॉन 25 से 31.4 में डिवाइड करेंगे 1.256 नियरली, इस वैल्यू 1.256 वी कैन ऑब्टेन आफ्टर डिवाइडिंग 31.4 बाई 25। tan phi इक्वल्स टू 1.256, देयरफॉर फेज एंगल फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 1.256, और इसका वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से टेबल से ऑब्टेन कर सकते हैं, जो नियरली 51.5 डिग्री इसका वैल्यू, क्योंकि tan 45 1 होता है और 1 से ज़्यादा वैल्यू है 1.256, तो ये 51.5 डिग्री नियरली। आप सभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से देख सकते हैं टेबल से, इसका वैल्यू 5 इक्वल टू tan इनवर्स 1.256, tan 5 का 1.256 कॉरस्पॉन्ड करता है tan 51.5 डिग्री। दिस इज फेज एंगल, दिस इज फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन LR सर्किट। अब जब फेज एंगल मालूम हो गया तो कभी कभी प्रॉब्लम में, खासकर से CBSE एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है कि कैलकुलेट टाइम लैग बिटवीन करंट मैक्सिमम एंड वोल्टेज मैक्सिमम। तो टाइम लैग मालूम हो जाएगा अगर हमको फेज मालूम कर लिए तो, चूँकि वोल्टेज मैक्सिमम V0 होता है, हम LR सर्किट के में वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेवफॉर्म वोल्टेज को इंस्टेंटेनियस V0 साइन ओमेगा टी। और इसमें चूँकि फेजर डायग्राम में हमने देखा था कि वोल्टेज लीड करता है करंट से एंगल, फेज एंगल फाई से, तो यहाँ पर करंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, मतलब यहाँ करंट लैग कर रहा है, लैग बिहाइंड, करंट लैग बिहाइंड
लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, AC वोल्टेज भी इन सीरीज LR सर्किट। तो फाई जो है फेज एंगल है, तो हमको टाइम लैग निकालना है, तो फाई को हम एक्सप्रेस करेंगे ओमेगा टी के रूप में, क्योंकि ओमेगा टी माइनस फाई है, तो मतलब फाई इक्वल्स टू, माने फाई को भी हम एक्सप्रेस करेंगे किसके द्वारा, क्योंकि सिमिलर चीज़ में से ही सेम क्वांटिटी से ही दूसरा, माने एक क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी से ही दूसरा उसमें सेम क्वांटिटी को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा टी के फाई को एक्सप्रेस करेंगे फेज को हम किसके द्वारा, ओमेगा टी के द्वारा, ओमेगा टी में माइनस है इसलिए। और V0 मैक्सिमम वोल्टेज है एंड I0 मैक्सिमम करंट है इन LR सीरीज सर्किट। सो फाई को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फेज एंगल को ओमेगा टी के टर्म में ही, क्योंकि ओमेगा टी से ही इसको में माइनस किया हुआ है। तो देयरफॉर टाइम लैग इक्वल टू T इक्वल्स टू टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज, T इक्वल्स टू फाई अपॉन ओमेगा। कई बार CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में, 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइम लैग के बारे में भी पूछा और सम अदर स्टेट बोर्ड्स में भी। तो फाई का वैल्यू हमने मालूम कर लिया 51.5 डिग्री, तो इसको रेडियन में हम कन्वर्ट कर दें, 51.5 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180 रेडियन में हो गया, ये रेडियन में हो गया, इसलिए कि 180 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन होता है, इसलिए 180 डिग्री इजकल टू हमारा जो रिलेशन है 180 डिग्री को पाई रेडियन कहा जाता है, पाई रेडियन। देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो देयरफॉर इसलिए यहाँ पर जो हमने हमारा फेज एंगल मालूम हुआ था इसमें, इस केस में वोल्टेज करंट के बीच में 51.5 डिग्री, तो उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके अपॉन ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, तो ओमेगा का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई एन, तो 2 इंटू पाई इक्वल टू 3.14 एंड फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज AC का। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, सीधे पाई का वैल्यू नहीं रखते, पाई भी लिखते तो ऊपर तो है कैंसिल हो गया ये। तो नाउ वी हैव टाइम T इक्वल टू टाइम लैग 51.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 200 100 मल्टीप्लाइड बाई 180, दैट इज 51.5 अपॉन 18 इंटू 10 टू पावर 3 नीचे लिख सकते हैं। तो 10 टू पावर 3 मतलब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 18 इंटू 10 100 इंटू 180 है, तो दैट इज 18 इंटू 10 टू पावर 3 दैट इज, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10 टू पावर -3 हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 ये सेकेंड में होगा, और ये डिवाइड कर दें केवल नीचे में बचेगा 18। अब 18 से डिवाइड करेंगे 51.5 में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइम्स, और उसके बाद 2 टाइम्स 18 इंटू 2 36, 3 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा 54 हो जाएगा, यहाँ 51 है, तो इसलिए 2.8 नियरली 2.8 के करीब 2.85 एग्जैक्टली 2.85 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड, 10 to the power -3 second. After dividing 51.5 by 18, we can obtain 2.85 into 10 to power -3 second, which is time lag. T is equal to time lag. तो फेज मालूम अगर हो जाए, फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो हम टाइम लैग भी मालूम कर सकते हैं। तो टाइम लैग निकालने के लिए CBSE एग्जाम में एक्चुअली और कुछ स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हमेशा 1-2 साल के बाद इसे पूछा जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही यह वीडियो जो कि पार्ट 7 था, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट AC क्लास 12 का, वह समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग एक और सर्किट डिस्कस करेंगे, AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज CR सर्किट, दैट इज कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट, और उसको AC सोर्स से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और उसमें भी करंट का और इम्पीडेंस का, टोटल इम्पीडेंस का, रिजल्टेंट वोल्टेज का एक्सप्रेशन, तथा उस पर भी रिलेटेड मतलब CR सर्किट पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी, क्योंकि CR सर्किट पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं CBSE 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तथा कुछ स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में भी, तो उसे भी करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं सभी व्यूअर्स से अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। यह चैनल, यूट्यूब चैनल जो
मेरे द्वारा किया जा रहा है फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार। इस चैनल ने केवल 1 ईयर से 1 साल से कुछ थोड़ा ही ज़्यादा समय में क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस के एक एक टॉपिक को लगभग पूरा किया है। 2-3 चैप्टर्स हैं जिसमें 2 और 3 चैप्टर्स जिसमें कि कुछ वीडियोज अपलोड करना शेष है एंड कुछ प्रॉब्लम्स। अदरवाइज 12 का सिलेबस लगभग पूरा किया जा चुका है इस चैनल के द्वारा, फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के द्वारा, तथा 11th का भी 75% सिलेबस को कंप्लीट किया जा चुका है, वीडियोज़ के रूप में अपलोड किया जा चुका है यूट्यूब में। तो अब तक कुल मिलाकर के 312 वीडियोज़, इस वीडियो को छोड़ करके ये 313 होगा। तो वह फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के इतने वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब में। तो अब केवल 25% सिलेबस 11th का रह गया है। और इसके अलावा मैंने बीएससी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोज बनाना शुरू किया है। उसमें पार्ट 1 में लगभग 1 दर्जन 12 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। उसी ढंग से पार्ट 2, पार्ट 3 में भी 6 वीडियोज ईच पार्ट 2, पार्ट 3 में भी अपलोड किए जा चुके हैं। अब क्लास 12 के बाद जो बचे हुए वीडियोज हैं 2-3 चैप्टर का, उसके करने के बाद और साथ साथ उसका भी काम जारी है वीडियोज अपलोड करने का, ग्रेजुएशन का भी। तो उसमें अब तेज़ी आएगी और क्लास 1 का सिलेबस पूरा करने के बाद अब बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। उसके अलावा मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स डॉक्टर एसी वर्मा का बुक में से 3-4 दोनों बुक्स में अभी केवल 3-4 चैप्टर्स का सॉल्यूशन किया है, लेकिन वह सॉल्यूशन भी अब चूँकि 12 का सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है तो उसमें अब तेज़ी आएगी। तो उस सभी को उसमें भी लगभग सभी चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का भी सॉल्यूशन करना है। तो यह काम, इस वीडियोज अपलोड करने का काम इस चैनल द्वारा मतलब 11-12 का सिलेबस पूरा होने के बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि क्लास 11 एंड 12 के अलावा ग्रेजुएशन के भी ऑल इंडिया में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें उसके ग्रेजुएशंस के स्टूडेंट्स के लिए भी उसकी तैयारी, उसके सिलेबस की तैयारी, उसके क्वेश्चंस की तैयारी वीडियोज़ द्वारा कराई जाए। और उसके अलावा क्लास 10 का भी एक चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को मैंने कंप्लीट कर दिया है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए भी। और उसमें फिजिक्स में केवल 3 ही चैप्टर और करना है क्लास 10 में, तो उसको भी अब पूरा किया जाएगा। तो मेरा यह प्रयास है कि क्लास 10 से लेकर के ग्रेजुएशन तक, उसके अलावा नीट, IIT JEE, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अलावा जितने भी और भी NDA हैं, NDA एग्जामिनेशन है, BSc AG है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज बनाया जाए, जिससे कि क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएशन पार्ट 3 तक के स्टूडेंट्स को लाभ पहुंच सके। तो इस चैनल के द्वारा, फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार, इस चैनल के यूट्यूब चैनल के द्वारा आगे भी 11-12 के सिलेबस, 12 का तो लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा ही बाकी है कुछ वीडियोज, और 11th का 25% सिलेबस पूरा करना है। तो उसके बाद भी ये काम जारी रहेगा, ऐसा मैंने ऐसा संकल्प लिया है। आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स में के प्रिपरेशन के लिए और अच्छे अंक आएँ, साथ ही नीट, IIT, NDA तथा अदर कॉम्पिटिशन्स में भी जो इससे रिलेटेड है, इंटर बेस्ड, उसमें सफलता मिल सके, तो मेरा ऐसा प्रयास है। तो आप लोगों से भी सहयोग अपेक्षित है, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ेगा। लेकिन मैं
मेरा आप सभी से वादा है कि 11-12 के सिलेबस पूरा करने के बाद भी और जो अदर क्लासेस का जैसे ग्रेजुएशंस का सॉल्यूशंस है सी वर्मा का, क्लास 10 का 3 चैप्टर बाकी है, तो उन सभी का काम पूरा किया जाएगा और अब वीडियो बनाने में तेज़ी आएगी। और तो आप सबों से मेरा आग्रह है कि आप सभी इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें, दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बतलाएं, ताकि वे सभी आपके साथी स्टूडेंट्स भी इस चैनल का लाभ उठा सकें, तथा सब्सक्राइब करना अधिक से अधिक संख्या में भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।